audible to you? Okay, that's nice. Yes. Firstly, tell me, did you get the worksheet? Okay, that's nice. Got your worksheet. Okay, so with this, firstly, we are going to do. I'll show you something. ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी and you have to tell me. ठीक है? Now, tell me what is this? Skeleton. Okay. This is skeleton. So it's human skeleton. And if I want, I can make it move also. मैं इसको move भी करा सकती हूँ. एक जगह से दूसरी जगह देखो, I can move it. ठीक है? Now tell me, is it a living organism or non? Non-living. Okay, you are saying it's non-living. Now tell me why it's non-living. Yes, why it's non-living? Yes, beta, why it's non-living? Yes, only one student. Raise your hand and tell me why it's non-living, not living organism. Okay. अब मुझे बताओ. Okay, write down also. Characteristics of living organism. पहला क्या होगा अगर हम किसी को कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म. इफ आई से आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज इट ट्रू? एम आई अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? Say yes or no. Raise your hand if you agree. Am I a living organism? Okay. Daffodil. Okay. Lotus. Pansy. Yes. Am I a living organism? Yes, Pansy. Raise your hand if you agree. Okay. And sunflower? Sunflower. Am I a living organism? Okay. सब कह रहे हैं हाँ मैम इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब मुझे कौन बताएगा why I am living organism? Why I am not non-living organism? क्यों मैं non-living नहीं हूँ? Yes, tell me. Yes, daffodil से first bench boy आ जाओ बेटा. Daffodil, first bench boy. Why I am living organism? Because you speak loudly. Because I speak loudly. That's the reason. अगर मैं यहाँ पर भी स्पीकर लगा दूं, ठीक है, तो वो तो मुझसे भी ज्यादा ऊंचा बोलेगा. Yes or no? कोई अगर मैं गाना सॉन्ग प्ले कर दूं, क्या वो तेज नहीं होगा, मुझसे ऊंचा नहीं होगा? Ma'am, you are a living thing because of you are breathing. Ma'am, he said this. Okay, because I'm breathing. Okay, that's nice. That's nice. Sit down, beta. Sit down. So, if we are saying, so let's connect it with the two terms. एक तो हो गया breathing, ठीक है? Breathing से related आ जाता है एक respiration. सब लिखो इस everyone note down. यहाँ पर कर. Everyone note down. Note down. बेटा in your textbook you will get paragraph and giving you some notes, ठीक है, फ्लो चार्ट वे में, so it will be easy for you to remember. अब हम इसको कनेक्ट करते हैं. ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या हो गया? सांस लेना. रेस्पिरेशन क्या हो गया? जो सांस आपने अंदर ली है, जिसमें आपने ऑक्सीजन अंदर ली है, वो आपके कुछ काम करेगी. बट इट डज. क्या करेगी ऑक्सीजन? जो आपने खाना खाया है, जो वो डाइजेस्ट होके आपके ब्लड में पहुंचा है, अब उसका कुछ तो काम होगा. हम खाना क्यों खाते हैं? कौन बताएगा? हम खाना क्यों खाते हैं? व्हाट इज द रीजन वी हैव फूड? क्यों खाना खाते हैं हम? क्या हम बिना खाना खाए नहीं रह सकते? यस, हु विल टेल मी फ्रॉम द लोटस? आई नीड आंसर फ्रॉम द लोटस. यस लोटस, रोल नंबर 3 आ जाओ फटाफट.
Roll number 3 from the Lotus. Come fast and tell me. Yes, why we should have food? Unmute करो पहले बेटा अपने आप को. Unmute yourself. Zoom से बेटा, Zoom में एक माइक वाला ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करो. Yes, someone please help her out. Please, someone from the Lotus. बेटा कोई इसका माइक ऑन करो Zoom से. In Lotus section, please turn on your mic. A ma'am is there. Ma'am, please help the student. Okay. Yes, roll number 3 बेटा. Yes. अब मुझे बताओ, क्या ये जो खाना खाते हैं, why is it important? क्यों खाना important है? एनर्जी के लिए. That's fine. अब क्या खाना हम खाते हैं सीधा हमें खाना एनर्जी देता है? अकेला खाना खाने से एनर्जी मिलती है? नो. तो जो हमने खाना खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, खाना जब अंदर गया, ब्लड में उसके न्यूट्रिएंट्स गए, जब ऑक्सीजन उसको मिलती है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर कन्वर्ट होते हैं एनर्जी ऑक्सीजन के मिलने पे. ठीक है, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन. सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड व्हेन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो उसको कन्वर्ट करती है इनटू एनर्जी. बट इन सम ऑर्गेनिजम्स, जो खाना है वो एनर्जी में विदाउट ऑक्सीजन भी कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में. ठीक है, तो लेट्स से वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लिखो इसे, ऐसे ही बनाओ एवरीवन. एरोबिक and anaerobic. Aerobic and anaerobic. Aerobic means those need oxygen to get energy. So they need oxygen. उनको ऑक्सीजन चाहिए. Like humans, हम बिना ऑक्सीजन के काम नहीं कर सकते. We need oxygen. लेकिन there are some organism who doesn't need oxygen. So उनको anaerobic कहते हैं. They do not need ऑक्सीजन. उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. दे डोंट नीड ऑक्सीजन. ठीक है, एक जिनको ऑक्सीजन चाहिए, एक होते हैं जिनको नहीं चाहिए. कोई एग्जांपल बता सकते हो? एनी ऑर्गेनिज्म हु डजंट नीड ऑक्सीजन. कोई एक ऑर्गेनिज्म. ओके, यू ऑल आर थिंकिंग. चलो, आई गिव यू हिंट. आप में से किस किस को, हाउ मेनी ऑफ यू likes to have, how many of you likes to have cake? किस किस को केक खाना पसंद है? जल्दी से हैंड रेज करो, चीटिंग नहीं होगी. मुझे सबका पता है, सबको केक खाना पसंद है, पेस्ट्री खाना पसंद है, डोनट्स खाना पसंद है. यस. पेंसी, पेंसी के बच्चे बहुत शरीफ है. हाँ, केक नहीं खाते. बर्थडे पे जाते हो क्या करते हो? नो नो नो, आई वी डोंट वांट टू हैव केक. ऐसे करते हो? सब झूठे यहाँ पर पेंसी के बच्चे हैं. जल्दी से हैंड रेज करो. अपने बर्थडे पे केक नहीं काटते? काटते हैं, है ना. सब हंस रहे हैं कि हाँ, सबके धीरे धीरे हैंड रेज हो रहे हैं. यस. सो यू ऑल हैव केक. अब मुझे बताओ, चलो हैंड, लोअर योर हैंड्स, लोअर योर हैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. किस किस को छोले भटूरे पसंद हैं? छोले भटूरे किस किस को पसंद हैं? ओके, मोर देन 80% स्टूडेंट्स. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. अब मुझे बताओ, अब ये जो दोनों आइटम्स हैं, फूड के आइटम्स हैं, कभी इनको बनते देखा है किसी ने? केक को तो देखा होगा, आई थिंक सो. केक का जो पेस्ट होता है, जिसको हम बैटर कहते हैं, वो इतने से पतले से उसमें जाता है, लेकिन जब वो बनता है ओवन में, डबल ट्रिपल हो जाता है ना, फूल जाता है. भटूरे की बात करें, जो आटा गूंदा जाता है, डो जो होता है, गूंदा हुआ आटा, वो इतना सा होता है. उसको फिर ढक के रख देते हैं. आफ्टर 2 or 3 hours इट बिकम्स ट्वाइस. उसकी भी जो, अगर हम हाइट देखें, बढ़ जाती है ना, ऐसे हो जाता है.
क्या इन दोनों में ऐसा डलता है जिससे वो फूल जाते हैं और स्पॉन्जी हो जाते हैं? क्या डलता है जिसको? ये आई कैन सी, मुझे रोज का आंसर मिल रहा था, करेक्ट ही मिल रहा था, बोलो बेटा। ये ईस्ट, ईस्ट, लिखो इसे, एग्जाम्पल लिखो। एनारोबिक का, एरोबिक का तो तुम कितने लिख सकते हो, हमारा एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट एनारोबिक, ईस्ट। अब घर पे भी देखना, कहीं ना कहीं ये ड्राई ईस्ट, अगर आपके घर में बेकिंग होती है, सो यू कैन सी ड्राई ईस्ट करके एक छोटा सा डब्बा होगा घर पे पड़ा, ठीक है। सो वो डलता है, जैसे ही वो डलेगा खाने में, थोड़े टाइम बाद वो स्वेल अप कर जाता है, फूल जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। सो इस ईस्ट को हम खाते भी हैं, ठीक है। सो बट इट रिस्पायर एनारोबिकली, जबकि ये, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, चलो अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। अब कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो व्हाट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक? क्या होगा? लेट्स कनेक्टेड विद द रेस्पिरेशन ओनली, रेस्पिरेशन से ही कनेक्ट करते हैं। रेस्पिरेशन में वी गेट एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब जो ये फूड से हमें एनर्जी मिल रही है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट डू वी कॉल इट? जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं खाने से, व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? सोचो थोड़ा सा बेटा। इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, लिखो। नाउ न्यूट्रिशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, अभी हम टू टाइप्स में ही वर्क करेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। ओके, नाउ हु कैन टेल मी व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? कौन बता सकता है? हेटेरोट्रॉफ्स बताओ चलो पहले। हु कैन टेल मी अबाउट द हेटेरोट्रॉफ्स? बेटा पहले फिफ्थ वगैरह में भी पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस टर्म। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? किसी को नहीं पता? ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो पेंसी से बता दो मुझे, रोल नंबर 10। पेंसी रोल नंबर 10, आ जाओ फटाफट, कम फास्ट, माइक ऑन करो। यस, थोड़ा पीछे जाओ बेटा फर्स्ट बेंच के पास, सो दैट आई कैन सी यू। और पीछे और पीछे और पीछे। Yes, now it's perfect position. Yes, now tell me. बोलना आराम से बोल बेटा, बाकी सब प्लीज बी साइलेंट। हाँ बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलो। Can you repeat the question? Can I repeat the question? Question is what are heterotrophs? The nutrients that we get from non-veg. That we get from Non-veg. non-veg? ये तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो गया बेटा, दैट इज नॉट इट, दैट इज योर चॉइस, है ना? ये तो चॉइस होगी, वी वांट टू बी यू नो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट। नाउ सभी ध्यान से सुनो, पे अटेंशन, व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स? मुझे बताओ कौन कौन जो है ये सोचता है कि हम अपने हाथ अगर आगे करेंगे तो एक हाथ में आपके गोभी अपने आप आ जाएगी और एक हाथ में आलू अपने आप ग्रो करेगा? किस किस को लगता है ऐसा होगा? क्या हमारे हाथ से या हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से सब्जियां या फ्रूट्स कैन ग्रो? यस और नो? यस और नो? नहीं ग्रो करेगा। मगर अगर अभी मुझे गोभी मिल जाए और यहाँ पर आलू मिल जाए बना बनाया, आई कैन कट देम, आई कैन कुक देम, कर सकती हूँ ऐसा? कैन आई कुक देम एंड मेक आलू गोभी की सब्जी? यस दैट आई कैन।
अब इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते लेकिन पका सकते हैं, या फिर बना बना मिले तो उसे खा सकते हैं, दोज आर हेट्रोट्रॉफ्स। सो हेट्रोट्रॉफ क्या हो गया? दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट सिंथेसाइज, लिखो इसे बेटा, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकते। दे डिपेंड दे डिपेंड अपॉन other organisms for their फूड नीड या फूड रिक्वायरमेंट, अपने खाने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे हमें अगर खाना बनाना है, या तो हमें प्लांट पे डिपेंड होते हैं कि सब्जियां आ जाए, स्पाइस आ जाए, है ना, या फिर हम एनिमल पे डिपेंड होते हैं कि हमने अगर मीट खाना है या एग खाना है। सो वी डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फूड। अब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते? दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता, उसे उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसे खाना नहीं चाहिए, है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म? नो। अच्छा चलो, लेट्स सी हियर। मैं आपको वो ऑर्गेनिज्म से आज मिलाती हूँ, ठीक है? यू आर गोइंग टू मीट दैट ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखना एवरीवन। तो लेट्स मीट न्यू ऑर्गेनिज्म। एक नए ऑर्गेनिज्म से मिला रही हूँ। हैव यू सीन दिस? देखा? इसको कहते हैं प्लांट। इसको कहते हैं प्लांट। प्लांट को कभी किसी ने खाना खाते हुए देखा है? रेज योर हैंड अगर किसी ने देखा है कि प्लांट जो है आपकी तरह चपाती खा रहा है, भटूरा खा रहा है, केक खा रहा है, कुछ खाते हुए देखा है कभी? हैव यू सीन एनी प्लांट इज हैविंग एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड? किसी ने देखा है? नहीं देखा। लेकिन प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो भूख लगती है। देन हाउ प्लांट इज सर्वाइविंग? तो प्लांट कैसे जिंदा है? सो आंसर है इसका, प्लांट हमारी तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता फॉर इट्स फूड। वो डिपेंड करता है सन पे। इट डिपेंड्स अपॉन सन, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन, इसको देखो ध्यान से, सब बनाओ, एवरीवन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। पत्तों के पास छोटे छोटे ऐसे पूरे लीव्स में छेद होते हैं, छोटे से टाइनी होल्स। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम है गैस एक्सचेंज करना। यहाँ से गैस अंदर आती है और गैस बाहर जाती है। कौन सी गैस अंदर आती है इससे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, बाहर कौन सी आती है? दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है? इसके अलावा और क्या आ गया? इसके अलावा आ जाता है, इसके अलावा आ जाता है पानी, जो कि हम सॉइल में डालते हैं या सॉइल में होता है। तो वाटर ऑल्सो गोज अप। अब हमने सिर्फ यहाँ पर किस पे ध्यान देना है? वी आर गोइंग टू पे अटेंशन हियर टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जैसे अभी जो पत्ता है, इस पत्ते को थोड़ा जूम करते हैं। मैं यहाँ पर पत्ता दोबारा बना रही हूँ, अकेला पत्ता बना रही हूँ। ओके, आई एम ड्रॉइंग हियर ओनली द लीफ पार्ट। ये हमारे पास लीफ है। नाउ इन दिस लीफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सपोज कर लो इनमें रिएक्शन होता है, या सपोज कर लो ये रिएक्ट करते हैं, मिक्स होते हैं। कब मिक्स होते हैं? व्हेन सनलाइट, जब सनलाइट पत्ते पे पड़ती है वो गर्म होता है। सो सनलाइट गिव्स एनर्जी, सनलाइट से उन्हें एनर्जी मिलती है।
Then these कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? फूड ऑफ प्लांट, प्लांट का फूड है। उसके साथ पानी निकलता है और थोड़ा सा, और साथ में हमें जो चाहिए ऑक्सीजन, वो गैस बनती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। एंड दिस होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब अगर हम इसको ब्रेक करें, टू मेक समथिंग, कुछ बन रहा है, टू मेक समथिंग। ठीक है, कुछ बन रहा है। कब बन रहा है? फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस। ठीक है, समथिंग इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट हम पे डिपेंड नहीं है फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट। प्लांट इज डिपेंड अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, और इससे वो खाना बनाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड इफ दिस प्रोसेस इज क्लियर। क्योंकि आपके हर क्लास में अब आगे से आगे चलता ही रहेगा टॉपिक, 7, 8, 9, 10 ऑनवर्ड्स टिल, अगर आप मेडिकल लेते हो तो ये 12 तक चलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, दैट्स नाइस। सो अब क्योंकि प्लांट इज नॉट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे? हु कैन synthesize, who can synthesize their own food, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स है ऑटोट्रॉफ। अब इसी को कनेक्ट करते हुए वी आर मूविंग अहेड विद द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। खाना अंदर गया, वी गेट एनर्जी, बट सारा का सारा खाना वी डोंट नीड, कुछ वेस्ट बन जाता है एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट प्रोडक्ट। अब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस, जिसमें हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं? व्हाट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड? यस, एनी ऑफ यू? कोई बता सकता है? हैंड रेज करो इफ यू नो। व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस? यस बेटा, चलो कमिंग टू दैट प्रोसेस है, चलो आ जाओ। दैट थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसको लिखो, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी बॉडी से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी बॉडी से वेस्ट टॉक्सिक बाहर निकालता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, सो हम यूरिन की फॉर्म में, हम फीसिस की फॉर्म में एंड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट वी रिमूव टॉक्सिक और वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी टाइम टू टाइम। ठीक है, हम अपनी बॉडी से ऐसे निकालते हैं। इवन प्लांट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी अपनी बॉडी से निकालता है। जो ड्राई लीव्स है, सड़े हुए पत्ते हैं, उनको वो फेंकता है अपनी बॉडी से। ठीक है, ग्यूटेशन होता है, एक्स्ट्रा वाटर, या फिर हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी टर्म लिख लो ग्यूटेशन। देन थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब उसके लिए वेस्ट गैस कौन सी? ऑक्सीजन, तो वो उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। So this is how they get rid of waste product.
इस तरह से वो वेस्ट प्रोडक्ट से अपना जो है पीछा छुड़ाते हैं। इज इट क्लियर? Shall I move? Yes? सभी लिख रहे हो, चलो लिखो बेटा फास्ट। Okay. So now we are moving ahead with the fourth characteristics. Fourth characteristic is respond to stimuli. Respond to stimuli. Respond to stimuli लिखो इसे। Respond to stimuli. अब इससे एक मिनट, रो सेक्शन में जो खिड़की वाली साइड थर्ड लास्ट बेंच पे कॉर्नर में 2 गर्ल्स बैठी हैं। 2 गर्ल्स, यस। आपकी आपके जो वॉल है वहां पर देखने छिपकली चली हुई है, छिपकली, लिजर्ड। थोड़ा साइड हो जाओ, हाँ बस बस बस, ठीक इतना ही था, बस इतना। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चली गई, बैठ जाओ, बैठो बैठो। अब सबने ये देखा होगा कि क्या हुआ वहां पर 4 डेस्क के बच्चे हिल गए। मैंने ये कहा कि छिपकली वहां बैठी है, बट वहां कोई छिपकली नहीं थी, वहां पर कोई छिपकली नहीं थी। अब मैंने ये क्यों किया? क्योंकि वो इस टॉपिक से रिलेटेड था, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब क्या हो गया? आपके आसपास जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से अपने आप को आपने क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। आपने रिएक्शन दिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा छिपकली है। शी रिएक्टेड, शी रिस्पॉन्ड। कैसे रिस्पॉन्ड किया? वहां से निकलने की कोशिश की, ठीक है, दूर हो गए। वैसे जो है आगे पीछे के बच्चे हैं वो भी रिस्पॉन्ड करने लग पड़ेंगे कहीं छिपकली उन्हीं के ऊपर ना आ जाए, ठीक है। सो दिस वाज द रिएक्शन। क्या था? रिएक्शन था। जो बाहर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, जबकि हुआ कुछ नहीं था, ठीक है। मैंने सिर्फ फॉर द एग्जाम्पल से कि आपको समझ आए कि स्टिमुलाई क्या होता है, तो मैंने आपको वो करके दिखाया, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को, बाहर जो हमारे आसपास चीज हो रही है उसके लिए रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई इज व्हाट? इट इज द चेंज इन इन्वायरमेंट। जो आपके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज स्टिमुलाई, ठीक है। तो स्टिमुलाई क्या हो गया? एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। जो आपके इन्वायरमेंट है उसमें लिखो, स्टिमुलाई का हो गया एनी change in the environment. Any change in the environment. ठीक है, so that is the stimuli. ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल ले, अगर आप रोज फ्लावर को, तो स्टेम है उससे अगर प्लग करने की कोशिश करते हो तो उसमें जो कांटे हैं केवल वो लग जाते हैं, तो व्हाट यू डू? आप फटाफट हाथ हटाते हो, है ना, कि और ना छूट जाए, कहीं हमें जो है ना निकल जाए। सो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वो भी एक अगेंस्ट एक आपका रिस्पॉन्ड है, ठीक है। गरम कोई, अगर आप गलती से जलते जलते कोई अगर पैन है उसको हाथ लगा लो, फटाफट हटा देते हो, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कि आपको गरम लगा और आपने हटा दिया, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। नाउ इसी से अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, अब क्या हो सकता है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक? दैट इज मूवमेंट, हलचल, हलचल शो होना। लाइक वी कैन मूव, हम तो एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, बट प्लांट कैन नॉट मूव। प्लांट चलता है? प्लांट कैन मूव? प्लांट, अब देखो आपने बेटा ये पढ़ा होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज डिफरेंट। मूवमेंट क्या
होती है? एक ही जगह खड़े होके आई एम मूविंग माई आर्म्स, माई मूविंग माई नेक, दैट इज मूवमेंट। लोकोमोशन क्या हो गया? व्हेन आई एम चेंजिंग माई पोजीशन, ठीक है, ये मैंने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली, दैट इज लोकोमोशन। तो मूवमेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है, प्लांट ऑल्सो डज, प्लांट भी मूवमेंट दिखाता है। किस किस को सनफ्लावर के बारे में कुछ पता है? एनीथिंग? कोई सनफ्लावर के बारे में कुछ बता सकता है कि सनफ्लावर मूवमेंट दिखाता है कोई? यस, सनफ्लावर पे मूवमेंट दिखाता है। अच्छा, सनफ्लावर का नाम सनफ्लावर क्यों है? व्हाई इट इज कॉल्ड सनफ्लावर? या सूरजमुखी कहते हैं, हिंदी भी कॉल इट सूरजमुखी। क्यों कहते हैं? कौन बता सकता है? बताओ जल्दी से, इट्स वेरी सिंपल। क्यों कहते हैं सूरजमुखी हम इसे? रोज से कोई रोल नंबर आज 13, रोज रोल नंबर 13। यस बेटा, अब मुझे बताओ वाई रोज, सॉरी रोज प्लांट नहीं, रोज तो आपका सेक्शन है। सनफ्लावर जो है उसको सनफ्लावर क्यों कहते हैं, या फिर सूरजमुखी क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट सूरजमुखी? स्पीक लाउड, स्पीक लाउड, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। अच्छा, सूरज क्या होता है? सन। मुखी मतलब क्या होता है? मुख क्या होता है? फेस, मुंह हो गया, फेस हो गया। सूरजमुखी वो फूल जिसका मुंह सूरज की तरफ रहता है, वो फ्लावर जिसका मुंह जो है किसकी तरफ रह रहा है? सन की तरफ, सो वी कॉल इट सूरजमुखी। ठीक है, सिट डाउन नाउ, लेट्स सी हियर बेटा, सब ध्यान से देखो। ये सन है इस साइड मॉर्निंग में इधर, ठीक है। अब ये तुम्हारा सूरजमुखी है, और सूरजमुखी का फेस किस साइड है? सन की तरफ, जहां सन है उसी तरफ अपने फेस किया हुआ है। अब आप इसको अगर इवनिंग में देखोगे, इवनिंग में सन इधर है, तो उसका फेस उस साइड को नहीं रहेगा, इट विल टर्न टू दिस टाइप, अब वो इस साइड को हो जाएगा। तो सूरजमुखी अपना जो फ्लावर का फेस है हमेशा सन की तरफ फेस करता है। अगर सन इधर है तो इसका इधर रहेगा, सन अगर इस साइड है तो इस साइड रहेगा। तो इसीलिए उसको कहते हैं सूरजमुखी इन हिंदी एंड सनफ्लावर इन इंग्लिश। इज इट क्लियर? क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब ये जो मूवमेंट है सन के अकॉर्डिंग, अगर सन इधर है तो इधर, सन इधर है इधर, ये जो मूवमेंट है व्हाट डू वी कॉल इट? इसको हम कहते हैं, लिखो, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। अब इसमें हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे, ठीक है, लेट्स ब्रेक द टर्म, हम इसको ब्रेक करते हैं। ट्रॉपिज्म मतलब होता है मूवमेंट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। फोटो मतलब हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, फोटो मींस लाइट, तो लाइट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। कि जहां लाइट है, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट सनलाइट, तो ये जहां सन की लाइट है, सन है, उस तरफ उसने फेस, तो दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। इज इट क्लियर? जिसको हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, मूवमेंट जो फ्लावर की है विद रिस्पेक्ट टू द सन, ठीक है। मगर मगर देयर इज वन मोर थिंग। अब मुझे बताओ, रूट्स ऑलवेज ग्रो इन दिस डायरेक्शन, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है? यस, रूट्स ग्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द रीजन? वो ऊपर को क्यों नहीं चलती जैसे शूट्स होती है? व्हाई रूट्स ऑलवेज ग्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? कौन बताएगा? यस बेटा, And they need water. And they need water. And they need water. they need water, that's why it goes downward। अगर मैं कोई रूट है, चलो आपने कहा कि पानी करके, ठीक है, अगर ये सॉइल है और मैं यहाँ पर इतना सारा पानी रख दूं तो क्या रूट ऐसे क्यों ग्रो करेगी? मैम उसको बस सॉइल चाहिए। तो सॉइल चाहिए,
के इधर सॉइल रख दी, तो अब क्या इस साइड को करेगी? अपनी मर्जी से करेगा। अपनी मर्जी से करेगी, अब मर्जी पे आ गया है ना, अब तो अपनी मर्जी चलाएगी। यस रोज सेक्शन आई कैन सी अ गर्ल। यस बेटा, यस बोलो। Because gravity रूट्स को अपनी तरफ खींचती है। यस बेटा रिपीट, एक बार रिपीट करके थोड़ा लाउड बोलो ताकि सबको सुनाई दे। यस इसकी अर्थ मैम रूट्स को अपनी तरफ खींचती है मैम, इसलिए मैम वो नीचे को जाती है, ऊपर को नहीं। That's nice. So here the answer is gravity. जिसकी वजह से अभी आप सब टिके हुए हो बेंच पे, उड़ नहीं रहे। मून में अगर होते तो उड़ रहे होते अभी आप सब। So the reason is due to gravity, root move in downward direction. जो ग्रेविटी है वो नीचे को खींचती है ना। अगर हम कोई चीज ऊपर को फेंके, इट ऑलवेज कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे को आएगी। इफ आई आस्क यू टू जंप, अगर अभी आप जंप करोगे ऐसा तो नहीं ना ऊपर ही उड़ जाओगे, you will come down. So it is because of gravity. Similarly, जो roots हैं वो नीचे को जाती है। अब ये जो इसकी मूवमेंट है, रूट की नीचे की तरफ जाने वाली मूवमेंट, what do we call it? We call it, तो भी लिखो जियोट्रॉपिज्म। जैसे फोटोट्रॉपिज्म था, it is called जियोट्रॉपिज्म। It is called जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब एक और, किस किस को मिमोसा प्लांट के बारे में कुछ पता है? मिमोसा, अरे मैं हिंदी में नाम नहीं ले रही उसका, अगर हिंदी में लूंगी तो आप सभी हैंड रेस कर लोगे। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट्स इंग्लिश नेम। सो मिमोसा, मिमोसा के बारे में किस किस को पता है? समोसा नहीं, मिमोसा, कंफ्यूज मत करो समोसे के साथ। यस मिमोसा, यस पता है। किसको मिमोसा पता है? अच्छा चलो मैं अब इसका हिंदी में नाम लेती हूँ, छुई मुई प्लांट। हो जाता है। यस, तो छुई मुई प्लांट का क्या होता है बेटा? अगर हम कहें ये छुई मुई प्लांट है तो ये पत्ता है, देखो ऐसे होता है, ठीक है, इट इज लाइक दिस, ऐसे होता है, ठीक है। अगर इसको कोई टच करने जाता है, सपोज कोई इसको टच करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये फोल्ड हो जाता है, इट गेट्स फोल्ड। ये ऐसे इसके सारे के सारे जो पेटल्स हैं, इट गेट्स फोल्ड, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो मूवमेंट, ये भी मूवमेंट है। और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में भी हम इसको डाल सकते हैं, टू द टच, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे इसको बेटा, अभी तो चलो नहीं, मैं नास्तिक कहते हैं इसे, ऑलमोस्ट नास्तिक, अभी लीव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ऑल आर ह्यूमंस यार, हम सभी ह्यूमंस यहाँ बैठे हुए हैं। अब मुझे बताओ, ह्यूमन अभी तक क्यों है? हम अभी तक अर्थ पे क्यों है? यस डेफोडिल से समवन इज सेइंग यस बेटा, क्यों है हम अर्थ पे अभी तक? क्योंकि हमने घर बनाया हो इसलिए। किसलिए किसलिए? और एक बच्चा बोले, एक बच्चा बोले क्यों है हम? व्हाट इज द रीजन? बताओ जल्दी से बताओ, आई नीड रीजन। ऑक्सीजन इसलिए। हाँ, और किस बात की आपने ऑक्सीजन है इसीलिए है, ठीक है। और कोई रीजन ऑक्सीजन के अलावा? चलो मैं ऑक्सीजन को कट कर देती हूँ, और क्या रीजन है? हम अर्थ पे स्टिल वी आर सर्वाइविंग। हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज होती जा रही है? व्हाई इट इज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे? बिकॉज ऑफ अगर खाना ज्यादा मिलेगा तो हम बढ़ थोड़े ना जाएंगे, वो तो हमारे अकेले का साइज बढ़ेगा।
खाना ज्यादा खाओगे खुद ही मोटे होंगे, आपके अंदर से 3-4 थोड़े ना निकल आएंगे, है ना। वो तो हमारा साइज इंक्रीज होगा इफ यू आर गेटिंग मोर फूड, है ना। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है, कुछ बनना, है ना, कुछ बनना। री मतलब दोबारा बनना। री जब हम कहते हैं री वर्ड जब किसी के आगे लगता है, इट मींस इट इज जो भी बन रहा है या जो भी चीज हो रही है, प्रोसेस दैट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। रिप्रोडक्शन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का बार बार बनते रहना, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल। अब ये कौन बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक बच्चा बेटा, एक बच्चा, सब बोलते हैं तो नॉइस हो जाता, वॉइस चाहिए, बोलो। वन स्टूडेंट फ्रॉम सनफ्लावर से बताओ, चलो सनफ्लावर से रोल नंबर 5 फटाफट आओ। Asexual reproduction is what? What is asexual reproduction? वही फर्स्ट डेस्क से बताना बेटा, माइक ऑन करके अपने डेस्क पे वापस जाना, so that I can see you. Yes. Now tell me. Yes बेटा, sunflower. Asexual reproduction क्या होती है? Do you know about asexual reproduction? Firstly tell me yes or no. बेटा आप दिख नहीं रहे, फ्रेम में आओ, थोड़ा सा इधर को और मूव करो। यस, अब बताओ पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? नहीं पता, ओके सिट डाउन, सिट डाउन। तो अब बेटा सभी लिखो फास्ट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें जो बेबी बन रहा है वो सिर्फ एक पेरेंट से बन रहा है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व हियर। लिखो, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, या तो मम्मी होंगे या तो पापा होंगे, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ओनली वन, एक मिनट, वन पेरेंट, only one parent is involved. Here you write two parents are involved, both mama papa are involved, दोनों मम्मा पापा होंगे बच्चे के, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों हैं बच्चे के, लेकिन ए सेक्शन में ओनली द मम्मा और पापा, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द लास्ट इज, वो आप अपने आप लिख लेना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जैसे अगर हम अपनी बात करें, पहले हम क्या थे, छोटे से बच्चे थे, इन्फेंट, इन्फेंट, ठीक है, जो बच्चे क्रॉल करते हैं, जिनके भी दांत आ रहे होते हैं, ठीक है, अप टू 2 years, ठीक है, इन्फेंट होते हैं। फिर क्या होता है, टोडलर्स बन जाते हैं 6 years तक, देन चिल्ड्रन, देन यू बिकम एडोलेसेंट, ये सब बेटा आप डिटेल में पढ़ोगे, देन एडल्ट। सो दिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा साइज, हमारी शक्लें चेंज होती रहती है टिल दिस पीरियड, ठीक है। असाइनमेंट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, क्योंकि हमने इसमें से काफी कुछ कर लिया है, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे 7 पॉइंट तक हो चुके हैं, नॉट 7, ज्यादा ही हो चुके हैं, ठीक है, सारे ही हो चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इज डन। अब हम असाइनमेंट करेंगे और थोड़ा सा जो आपके उसमें सिलेबस में है, थोड़ा सा दे रखा स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल वगैरह, तो वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो नाउ योर मैथ्स क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।